हेलो 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 हेलो। मेरे घर में तो 6 बज गए हैं, आपके घर में बजे कि नहीं? छः 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 छः। I don't know, for some fun reason I'm in a very happy mood today, which is very good. Hi Piyush, hi, how are you doing? पीयूष, पहले मैं आपको बता दूं, आप इतने सारे प्राइवेट में मैसेज भेजते हो सिर्फ सेइंग हाय सर के आगे क्या किस बात का जवाब दें? कुछ तो लिखो। ओके, so hello everybody. Hi Ashwini, thank you so much for joining in. Hello, 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 hello. आ रहे हैं। Hi Bhagyashree, how are you doing? Hi Pooja. Oh my God. Hi Namesh, how are you? Yes, waving, waving, waving. Very good. Hi Nirola. Hi Nirola. Sorry if I did not pronounce the name correctly. Very good. So how are you all doing? हाय व्हाइट लिली, हाय पॉटरहेड। हंसी क्यों आ रही है इतनी? हाँ, क्योंकि आज मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। फॉर सम रीजन आई एम इन अ वेरी गुड मूड, विच इज वेरी गुड। 6 बज गए एंड पार्टी शुरू हो गई। यस हिमाक्षी। हाय दीक्षा, हाउ आर यू? सर मैंने, अरे बाबा वही तो बोल रहा हूँ पीयूष, आप बार बार सिर्फ हाय सर मैसेज करते हो डीएम में, उसके आगे क्या? सिर्फ हाय सर का मैसेज करने के लिए थोड़ा ना बैठे हैं यहाँ पे। लिखो तो सही, आपको क्या पूछ रहे हो आप? Hi, hello, hello, hello. Hi, Rishi Kapoor. Hello. Oh my God, Rishi Kapoor. Wow, wow. Hi, Alisha. How are you? Alisha, hello. How are you? I am very good. How are you doing? It's been so long that we have met. So I hope everything is fine. Everybody is good at home. Hi, Jagyasini. Hi, Namish. It's so nice to hear you. Yeah. You know what? I have always felt, Namish, कि खुशी हो तो बांटो। एंड व्हाई नॉट? आप लोगों के साथ बांटूंगा तो किसके साथ बांटूंगा? कल मैं अपने दोस्तों के साथ बांट के आया था, आज आपके साथ बांट रहा हूँ। तो इट्स अ गुड प्लेस टू नो, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। बिल्कुल, क्यों नहीं अश्विनी जी, क्यों नहीं। हाँ, मुझे भी आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hi Sumu, how are you? Tarun Arora, very good. Okay, guys. So I hope everybody is doing well. After Saturday, you had a great weekend. How's life going? I know this is continuing. I mean, in terms of the Corona lockdown, but most of it has opened. I think 70-75% जो है खुल गया है. Life has kind of come back to its normal. It is going on and slowly, slowly, जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था, you will see life is coming back to normal. The darkest hour is gone, and now we are slowly moving back into light. This is what I think. And I'm sure आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसा ही हो. I just hope आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसा ही हो. Hi Hemant, how are you doing? So, so you know what? Today आई जस्ट वांटेड टू कम ऑन एंड जो दोहा इस बार हमने डाला है ना, वो दोहा बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि अगर आप और मैं देखें तो हमारा रिश्ता जो है वो मेजॉरिटी मेजरली शब्दों का है, बातों का है। आप मुझे पर्सनली नहीं जानते, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता। तो मुझे कहीं से जब मैं ये दोहे पढ़ता हूं ना, तो कहीं से जो भी दोहा मुझे उस टाइम पे स्ट्राइक करता है, आई गो ahead and I take that on. And today, it being the co-learning session 10, so it holds an importance because 10 somewhere is known to be as a number of completion. So I said, okay, अभी complete नहीं हो रहा है, GABA gets you X co-living complete, co-learning complete नहीं हो रहा है, but still I said, you know what, it is of some significance to me in my mind and heart. So I said, okay, let's go ahead and do something. So आज जो है हमारे साथ वैसे 3 लोग जुड़ने वाले थे, बट आज सुबह ही जो है जो तीसरे थे उनका मुझे मैसेज आया that there is some personal problem. पता नहीं कल रात को लेट आया था, आज सुबह आया है that they have some personal issues, they won't be able to join in. So that's why only 2 people will be there for today's live session. I'm going to go ahead and read the Doha. I cannot tell you how happy it makes me कि that you all are there in this journey with me, because मैंने शुरू से ये माना है जितना हम लोग साथ मिलकर एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं, अकेले ना सीख सकते हैं। और अकेले वो जो नॉलेज है ना, वो आपकी किसी काम की भी नहीं होती है। नॉलेज ऑलवेज ग्रोज व्हेन यू शेयर इट। इफ यू जस्ट कीप ऑल द नॉलेज विथ यू, देन यू काइंड ऑफ हिंडर योर ग्रोथ। तो इधर दोहा लेके चाहे मैं आता हूं, लेकिन आप लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से उस दोहे का मीनिंग सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने सब लोग अटेंड कर रहे होते हैं उन सबके साथ शेयर करते हो। सो वी ऑल हैव दिस को लर्निंग एक्सपीरियंस, which is a very beautiful thing, and I truly enjoy it, and I know because a lot of you write to me as well that you all enjoy it as well. So आज का संत कबीर का जो दोहा जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। ये संत कबीर ने दोहा लिखा था, और इतना डीप और इतना, मतलब अभी जब बात होएगी उसके बारे में तब जाके मैं बात करूंगा कि कैसा है।
आज हमारे साथ जो शेयर करने वाले हैं इसका मतलब वो दो हैं, दो लेडीज। एक है जग्यासिनी रेड्डी और एक है नीतू जोशी पंत। सो मैं शुरू करता हूं। आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड ब्रिंग जग्यासिनी ऑन बिकॉज आई सॉ जग्यासिनी वाज देयर। Jagyasini, there she is. Jagyasini, I'm coming for you. Okay. And Hemant, we don't take people on live like this. There is a process that we follow. Monday, the Doha is put out. By Tuesday night, you have to confirm your presence, and then you can come online on Wednesday. So we don't take people who just come online live. So नमस्कार, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। नमस्कार जग्यासिनी, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ये आपका बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा लाल लाल अच्छा चमक रहा है। आपको मैं सुनाई दे रहा हूं? बट जग्यासिनी, आपका कैमरा जो है वो स्टक। हाँ, अब चल गया, अब चल गया। आप कहां से हैं जग्यासिनी, और आप क्या करती हैं? प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए। कहां से? जग्यासिनी, आप हैं वहां पे? आपका कैमरा स्टक हो गया है। जग्यासिनी, और कैमरा इज स्टक। हेलो? हेलो? ओके। सो जग्यासिनी, आप आ रहे हो? आपका कैमरा बार बार अटकता जा रहा है। अभी फिर अटक गया। ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेक नीतू ऑन देन वील कम बैक टू जग्यासिनी। जग्यासिनी, हम आपके पास वापस आते हैं बिकॉज आपका कैमरा अटक रहा है। आप अपना कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिए। ओके? Okay, thank you. Okay, guys, so I'm going to go and bring Neetu on now. Let's see, where is Neetu? Neetu, are you there? Why can't I see her? Okay, Neetu hasn't come on only till now, which is very funny. Neetu's ID is Neetu. What is your ID? Because आपका नाम तो लिखा हुआ आएगा ही ना, आपका कोई भी ID होगा तो। Funny, funny, funny. I can't see Neetu on. And okay, so I can't see Neetu on only, and Jagyasini ka camera jo hai, it was getting stuck again and again. So let me try Jagyasini again, and if she comes on, she comes on. Otherwise, I will go ahead and explain it. We will continue with the conversation. I'm very good, Hirak. How are you doing? It's very good to hear from you as well. Hope everything is fine. Jagyasini, I'm coming for you again. Let's hope your camera works this time. Hello, 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 hello. Okay, so while we are waiting for Jagyasini, do you want me to read the Doha once again for you? The Doha is कहाँ गया Doha? Okay, so the Doha is बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी. Jagyasini, can you hear me now? Okay, आप उड़ीसा में कहां से हैं Jagyasini? गंजाम डिस्ट्रिक्ट बरहमपुर। ओके, और आप क्या, आप फैशन डिजाइन की स्टूडेंट हैं? वेरी गुड। कौन से ईयर में हैं आप? सेकेंड ईयर में। और आप क्या स्पेशलाइज कर रही हैं अपने फैशन डिजाइन कोर्स के अंदर? टेक्सटाइल्स, इंडियन टेक्सटाइल्स। आपका कैमरा फिर से अटक गया है, अब फिर चल पड़ा है। ओके जिज्ञासिनी, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते, आप मुझे फटाफट से ये बता दो आपको दोहे से क्या समझ में आया? हम्म, हम्म, हाँ,
बिल्कुल। वेरी गुड। ओके। ओके। हाँ। 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 ओके। या। या। ओके। वेरी गुड। आपने तो बहुत सारी चीजों को मिला के बिल्कुल इस बात को समझा दिया, क्योंकि ये हम लोग सब, जैसा मैं शुरू में भी बोल रहा था, आप कुछ और शेयर करना चाहोगे एंड देन आई विल टॉक। सुपर। थैंक यू सो मच जिज्ञासनी, आपने आके इतनी खूबसूरती से, इतने एक एक दोहा बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो महत्व है ना, इसका जो हमारी जिंदगी में एक चलन है, वो इतना जरूरी है। अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं, तो हम लोग कहीं से, हम इंसान हैं, हम लोग एक दूसरे से, जिसको हम बोलते हैं कि जिंदगी का की होता है कम्युनिकेशन, अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं, वर्बल हो व नॉन वर्बल हो, शब्द हो जिसमें, या जो सिर्फ हमारी इशारों से बात होती है, जिसको नॉन नॉन वर्बल बोलते हैं, अगर हम लोग अपने शब्दों का, या ना बोले शब्दों का, अपने इशारों का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो हम कितनी बड़ी किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, इसका हमें एहसास भी नहीं है। वो बोलते हैं ना, तीर एक बार कमान से निकला, तो आप कमान से निकला तीर आप जिंदगी में नहीं रोक सकते, क्योंकि वो तीर अब निकल गया। ऐसे ही आपके शब्द होते हैं। जो शब्द, जिस एनर्जी से आपके मुंह से निकलते हैं ना, उसके बाद आप कितना भी पछता लो कि अरे यार मैंने गुस्से में बोल दिया, अरे यार मेरा दिमाग ठीक नहीं था, अरे यार मैंने उनके जवाब में ये बोल दिया, अरे यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था, अरे मेरा ये था वो था, सब रीजंस हैं। आपके मुंह से जो शब्द निकल गए, आप उन शब्द को चाह कर भी वापस नहीं ले सकते। वो जैसे एक बात होती है ना, गया वक्त कभी वापस नहीं आता, सिमिलरली कहे शब्द आप कभी वापस नहीं ले सकते। शब्द एक ऐसी चीज है जो कि तलवार से भी ज्यादा भारी हो सकती है। वो बोलते हैं, एक इंग्लिश की सेइंग है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, विच मीन्स आप जो कलम जिससे आप लिखते हैं, जिनसे आप शब्दों को पिरोते हैं, वो किसी तलवार से भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। सिमिलर है आपके मुंह से बोले हुए शब्द। हम सबको दिल, दिमाग, सब कुछ दिया गया है। एक संतुलन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने गुस्से में आकर, अपने उस स्टेट में, जो मैं बार बार आप सबको बोलता हूं ना, कोशिश करो स्टे सेंटर्ड, बाहर की चीजों को उतना अपने आप को अफेक्ट मत करने दो। वो सारी चीजों का जो पूरा निष्कर्ष है, जो पूरा इन्फ्रेंस है, इट ऑल कम्स बैक टू व्हेन यू आर सेंटर्ड विद इन यू, you will never ever go ahead and say things which you do not mean, which you have just said in the moment, in the heat of the moment जिसको बोलते हैं। So thank you so much for joining in. Thank you जिज्ञासिनी, आप कुछ और ऐड करना चाहोगे? Thank you. Thanks a ton for joining in. Thank you. So guys, ये थी जिज्ञासिनी। I'm going to go ahead and try the next person जिन्होंने आज बोला था वो आएंगी, अगर वो आई हैं तो where is that lady? Okay, so she's still not there. I can't see her. So maybe she's also decided kind of not to come today, which is fine. We will carry on with our conversation.
जैसा कि मैं बोल रहा था, आज का कॉन्वर्सेशन फिर हम लोग छोटा रखेंगे क्योंकि दोहा सिर्फ मैं ही समझा रहा हूं, और कोई जो आए उन्होंने जिज्ञासिनी आई, थैंक यू सो मच, बट इट इज वेरी सैड दैट नीतू जोशी पंत didn't come. So, guys, I will request only send a message that you really want to join in the conversation, because then you take away the chance from somebody else. आप किसी और से चांस ले लेते हो जब हम आपको चांस दे देते हैं. So please, if you cannot make it, at least have the decency to send a message saying that I won't be able to make it. And or just don't say that you will come. So if it is a last moment emergency, it is understandable. Like right now, I will not be able to take anybody else on because it will be very incorrect on my part. So what I'm going to do is, for today, Jigyasini came. Thank you so much, Jigyasini, for joining in. I will only go ahead and explain the Doha. This is a co-learning thing. आप लोग इतना समय निकाल के यहाँ पर आए हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एक बार समझा दूं जो भी मुझे समझ में आता है. दोहा once again is, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी. जो भी आपके मुंह से निकलता है ना, शब्द, शब्द वो चीज है जो कि आप अपने दिल दिमाग से प्रोसेस करते हो. बाहर कोई सिचुएशन है, कोई सर्कमस्टेंस है, कोई पागल तो होता नहीं है कि हम लोग बैठे बैठे ऐसी बात करनी शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? हम लोग आपस में एक दूसरे, अपने आप से भी बात करते हैं. मैं तो बहुत करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपने आप से बात कर रहा होता हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे अंदर की होती हैं जिनको मैं क्लियर कर पाता हूं. लेकिन जब हम किसी और से बात कर रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत से जब तक बात हो रही है तब तक बिल्कुल ठीक है. बात, पहली बात याद रखना, बात वो बोलो जिस पर तुम्हें खुद पूरा विश्वास हो. अपने मुंह से कोई ऐसा शब्द कभी मत निकलने दो, कोशिश करो, जिस शब्द पर आपको ही विश्वास नहीं है. क्यों? Because the moment you start lying, the moment you start saying things which you do not believe in, there will be a time in that conversation or a conversation ahead where you will get caught. वहां पे जहां पे अगर आप अपनी बात को बैकअप नहीं कर सकते ना, अगर मैं गाबा गेट्स यू के अंदर बिलीव नहीं करता, तो आज शायद हम यहां 10वें एपिसोड पे नहीं होते. क्यों? क्योंकि मेरे को अंदर से कहीं से लगता है कि नहीं, ये को लर्निंग जो है ना, इसमें मैं भी सीखता हूं, आप भी सीखते हो, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्लेटफॉर्म को आगे लेके जाना. तभी ये आगे आ रहा है. अगर ये ऐसी ऊपर ऊपर की बात होती, कोई छिछला कोई प्रोग्राम होता, तो शायद आज तक ये कंटिन्यू भी नहीं होता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आज की डेट में, डिजिटल एज में, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो आपने देखा है कि जाके लोग ऐसे गंदे गंदे शब्द जो है, जिसको हम लोग ट्रोलिंग बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी लिखते हैं, जो कि जाके बहुत गंदे गंदे बेकार की बातें लिख देते हैं. वो ये भूल जाते हैं कि आप जो भी डिजिटल मीडिया पे डालते हो, वो आपकी क्या, आपके आने वाले पुश्तों के लिए भी वो डिजिटल मीडिया पर रहता है. आपने जो एक बात लिख दी ना यहाँ पर, या आपने कहीं कैमरा पे आके वो बात बोल दी, वो आपकी क्या, आपके आने वाले पुश्तों की जिंदगी में भी रहेगा. इट इज दैट मीडियम. So please do not say or write anything that you do not believe in. Secondly, it is very easy to say negative things. But why say negativity? Why spread negativity? बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा गया है कि वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को लेकर अपने अपने जो ख्याल होते हैं ना, दे लाइक टू गो अहेड एंड से थिंग्स बेसिस हाफ बेक्ड नॉलेज. यू नो हाउ बैड इट इज, and how random it is to go ahead and see and read all of that, and to put people through that. आप आज जैसे किसी अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, आपने किसी के बारे में कहीं से कुछ सुना आधा सा, आपने उसके अंदर, और किसी और ने अपना दिमाग डाल के कुछ उसके अंदर डाला, फिर आपने अपना दिमाग डाल के उसके अंदर कुछ और डाला, और जब तक वो बात आपके मुंह से निकली, वो बात क्या थी और वो बात क्या की क्या हो गई. शायद जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस इंसान का कोई मतलब, वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो बात बोली, क्यों बोली, कब बोली, शायद उसका कोई मायना ही और था. पुट योर सेल्फ इन दैट पर्सन शूज. अगर आपकी किसी बात को तोड़ मरोड़ कर किसी और सिनेरियो में प्रेजेंट कर दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, बिकॉज यू आर बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड. Never, ever, ever go ahead and pass on half-baked knowledge. हमारे सोशल मीडिया पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है. आज की डेट में क्या, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट लाइक टू इवन टॉक अबाउट देम. लोगों ने अपने छोटे दिमाग से, अपनी छोटी सी रिसर्च से जाकर पॉइंट्स उठाए हैं, और जाकर, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसके ऊपर जाकर लिख दिया है. बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश है, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग इन द लॉन्ग रन मुंह उन्हीं का काला होगा.
People do not understand that if you do not believe in something, if you do not have 100% of the facts from the right source, you have no right to go ahead and say anything. First of all, तो you have no right to go ahead and say anything about somebody else's life. बात करनी है ना, इतना शौक है मुंह खोलने का, अपने बारे में बोलो. खुद के अंदर गलतियां कम है क्या? खुद के अंदर हम कोई तोप होते हैं? मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट देम, बिकॉज मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है. मुझे लगता है जब मैं अपनी गलतियों के बारे में बात करता हूं, आई गिव माई सेल्फ एन अपॉर्चुनिटी कि जब मुंह से निकलता है ना, तो सडनली वो आपको आगे हिट बैक भी बड़ा करता है. जैसे मेरे बोले खराब शब्द आपको हिट कर सकते हैं, ऐसे ही मेरे बोले खराब शब्द मुझे भी उतना ही हिट करते हैं. So if I want to go ahead and learn, it is very important that I talk truth to myself. अगर मैं अपने आप को जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस दे सकता हूं, तो आपको क्यों ना दूं? आपने मुझसे क्या लिया है या मैंने आपको क्या दिया है जो मेरा हक है आपके ऊपर? ये जो हक की हम बात करते हैं ना, ओ यू नो व्हाट, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आई एम अ पार्ट ऑफ आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई आल्सो हैव ऑल द राइट्स. ये राइट्स तब क्यों नहीं निकल के आते व्हेन देयर इज द राइट टाइम फॉर यू टू गो अहेड एंड स्टैंड अप एंड से समथिंग? Why do only these rights come up in front of you and from your mouth when there is something in it for you? So please, अपने वो शब्द मत निकालो मुंह से जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है. Whatever you say, no, बहुत अच्छा है. अगर किसी से बात कर रहे हो, किसी के बारे में बात कर रहे हो, तो अच्छा बोलो ना. अच्छा बोलने से कम बोलना और अच्छा बोलना बहुत अच्छी बात है. ज्यादा बोलकर भी हमेशा अच्छा बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. बट बहुत सारे टाइम क्या होता है, हमें ऐसा लगता है अरे अगर मैंने नहीं बोला तो मैं कहीं से कम दिखूंगा या दिखूंगी. उस चक्कर में अपनी इज्जत बचाने के लिए हम लोग जाकर इतनी बकवास बोलते हैं, इतनी बकवास बोलते हैं कि बाद में बैठकर वी आर थिंकिंग आवरसेल्व्स, शिट मैन, आई सेड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. Why to put yourself in that situation? ये तो आपका खुद का रिफ्लेक्शन हुआ. Then what happens is you go ahead and what you have said to somebody or for somebody, do you realize how much it can hurt somebody? सुनने वाले को कितना दुख पहुंच सकता है आपके उन शब्दों से, चाहे वो आपको जानते हो चाहे ना जानते हो. सोशल मीडिया पर ये जो ट्रोल्स हैं, I mean, it is so sad that instead of concentrating on their own lives and growing up, they like to go ahead and comment on other people's lives, जिनकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है. पहली बात. दूसरी बात, अरे यार वो उनकी जिंदगी है, आप उनके साथ रहते हो, आप उनके सर्कमस्टेंसेस में हो, आपको क्या पता वो क्या क्या करके कहां पहुंचे हैं. Who the hell are you to go ahead and talk about somebody, यार? You are a citizen, you have the right to speak, यू हैव द राइट टू स्पीच, जो कि है हमारे फंडामेंटल राइट्स. बट बकवास करने का राइट किसी को भी नहीं होता है. बकवास करने का राइट किसी को भी नहीं होता है. सो प्लीज कीप दैट इन योर माइंड. आप, मैंने पहले भी बहुत सारे सेशंस में बोला है दैट लाइफ ऑपरेट्स एज अ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. अगर आप किसी के बारे में गलत बोलते हो, यू आर क्रिएटिंग द कॉज दैट टुमारो यू विल ऑल्सो एनकाउंटर दैट. आप ये सोचो, आज आपने किसी के बारे में कुछ बोला, वो बोला कहीं 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 से बात करते करते कहीं पहुंच गया. आप कल इंटरव्यू देने के लिए गए, आप किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए गए, आप कहीं भी गए, और जिस इंसान के बारे में आपने गलत बोला था वही इंसान आपके सामने आ गया, इंटरव्यूअर की कुर्सी पे बैठा हुआ, या जिसके साथ आप रिश्ता बनाना चाहते हो उनका बेस्ट फ्रेंड बन के, या उनका कोई रिश्तेदार बन के, या किसी भी तरह से. सोचो, सोचो, ये तो सामने आ गया. ऐसे कई बार ऐसा होता है वो इंसान नहीं आएगा लेकिन कोई और इंसान आपसे आके जो अपना इफेक्ट निकाल के जाएगा. Why do you want to put yourself through that situation? Why can't you just say that, you know what, I do not know about this topic, I do not know things, I might as well just keep my mouth shut. इतना ही शौक है बात करने का, बोलने का, तो जाकर रिसर्च करो पहले. जाकर पूरा अच्छे से देखो कि वो क्या बात है. शब्द अपने मुंह से ऐसे मत निकालो. कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं आ सकते. कितनी भी माफी मांग लो, वो जो दरार एक बार पड़ जाती है ना, वो दरार बहुत ही मुश्किल से भरी जाती है. सो व्हेन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू हैव द कंट्रोल, कि नहीं यार मैं अपने आप से खुद जाकर खड्डा खोदूंगा या खोदूंगी नहीं अपने लिए. सो why don't you have the control over your speech? Why can't you just go ahead and say, okay, you know what, I'm going to be a responsible talker, I will not go ahead and say things that I do not believe in, that I do not have the full information of, and something that will go ahead and spoil somebody's mood.
कितनी बार we go ahead and let's say, we go ahead and we say things knowing it will hurt somebody, but we present it in a manner, अरे अगर मैंने नहीं बोला होता तो उसको कैसे पता चलता? Somewhere inside अगर आप उनको ये बात बताओगे तो उनको दुख होगा. You know that. Why? It is very important. And the another important thing is it is not what you say, it is how you say. ये लास्ट वाले सिनेरियो में यही आता है. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है, उनका किसी के साथ रिश्ता चल रहा है, आपने उनको किसी और के साथ देखा, आपको ऐसा लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने दोस्त को जाके बताऊं. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपकी फ्रेंडशिप है. पहली बात तो इन अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बट नॉर्मल पॉपुलेशन अंडरस्टैंडिंग चलो माना रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपका उनको बताना एक ऑब्जेक्टिव वे में एक अलग बात है कि सुन ऐसा था, मुझे बाकी सर्कमस्टेंसेस नहीं पता, हो सकता है दोस्त हो सकता है भाई बंधु हो सकता है जो भी हो, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनको वहां पे देखा था तो मैं तेरे को बता दूं. ये एक अलग बात है. वहां जाके अरे सुन, तेरे को उसने उस टाइम फोन किया था, तेरे को उसने बताया, अरे एक अच्छा पता है क्या हुआ वहां पे ना, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा था, वो जैसे उसके साथ खड़ा था ना, जैसे उसके साथ बात कर रहा था ना, जैसे ये हो रहा था ना, जैसे आप अपना जो इमोशंस डाल देते हो ना एक फैक्ट के अंदर, आप सामने वाला जो कि आप पर इतना विश्वास करता है, आप उनका भी दिमाग खराब कर देते हो. उनका शायद रिश्ता बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हो, शायद उनको सब कुछ पता हो उनके रिश्ते में क्या है, लेकिन आप जाकर जो अपनी वो तीलियां डालते हो ना, वहां पे आग लग जाती है. एंड देन यू गो अहेड एंड से हाँ बट मेरे तो दोस्त है ना, मेरे तो बताना फर्ज था, उसने क्या समझा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. अरे शुरू कहां से हुआ? So whatever you say, words are something which are, there is no less importance to it. So please stop being this negative person. Negativity only breeds negativity. There is no need for you to say negative things or write negative things. If you really think तुमने पूरी दुनिया का ठेका उठाया है, तो प्लीज उस ठेके को रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठाओ. अगर आपको लगता है ना कि हाँ मेरे को किसी भी टॉपिक पे जाकर सोशल मीडिया पे कुछ बोलना जरूरी है, तो पहले प्लीज पूरी रिसर्च करो, देखो कि आप बिल्कुल कोर तक पहुंच सकते हो कि नहीं, तब जाकर कुछ बोलो. ये जो खाली सरसरी तौर पे क्योंकि 4 लोगों ने जाकर लिखा है तो अरे मैंने नहीं लिखा तो मैं कैसे कम हो जाऊंगा. जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, मेरे को कितने सारे आप लोगों ने जो है, किसी ने तो मेरे पोस्ट पे जाकर भी लिखा था कि आप why don't I go ahead and comment on somebody who's passed away recently? I will not name the person because then यहाँ पे सब चालू हो जाएंगे. How can I go ahead and write on somebody's death? क्या मैं उनको जानता था? क्या वो मेरे दोस्त थे? क्या मैंने उनके साथ कभी काम किया है? क्या मुझे पता है क्या सर्कमस्टेंसेस थे? क्या मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता यार. मुझे जो भी पता है, जो मीडिया में देखने को मिल रहा है, जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जो भी हो रहा है वो वहां से पता चल रहा है. तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो जाकर वहां पर कुछ लिख देगा? क्यों लिख दूं? मेरे को पूरा दुख है, बहुत दुख है कि किसी की डेथ हो गई है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या पता है? नहीं, किसी को पता है? जो भी सब पढ़ रहे हो, जो भी लोग आके इतना सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, किसी को पता है? जो आकर टीवी के सामने जाके मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. अरे यार, आपके 2 मिनट के फेम के लिए आपने किसी की जिंदगी, किसी की मौत को मजाक बना दिया. शर्म की बात है, शर्म की बात है. जब आपको पूरे फैक्ट्स पता हो ना, तब जाकर किसी बात पे मुंह खोलो. तो आपके जो शब्द हैं, प्लीज 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 अपने शब्दों को ऐसे बोलो, तोल कर बोलो कि किसी को दुखे नहीं, और अपना बेवकूफ मत बनाओ. क्योंकि आज की डेट में सबके पास गूगल है. आज की डेट में जहां से आपको इंफॉर्मेशन आती है ना, सबको आती है. आप जब 4 लोगों के बीच में बैठ के कोई अधपकी बात बोलते हो ना, उन 4 में से 3 बैठ के सबसे पहले रिसर्च करते हो और फिर आपकी पीठ पीछे हंसते हैं. पागल है, इसको तो आधा ही पता था. या तो अपनी वैसी इमेज बना लो कि यू नो व्हाट, ये हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन देने वालों में से है, इसकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते. या ऐसे इंसान बनो जिसकी बात, जिसके शब्द पर सामने वाला आके बोले अच्छा अगर उसने बोला है ना तो बात में दम होगा. और वो बात तभी होती है जब आप अपने शब्दों को तोलो. सिर्फ इसलिए मत बोलो कि अरे 4 लोग सुनेंगे तो अभी आकर 4 लोग मुझे फॉलो कर लेंगे, या 4 लोग सुनेंगे तो कहीं से मेरी इज्जत शान बढ़ जाएगी. वो शान जो है ना, खाली इतनी सी देर के लिए बढ़ती है, उसके बाद जो नाम खराब होता है ना, वो इतना सारा खराब हो जाता है. तो सोचो,
अपने मुंह से शब्द तभी निकालो जब आपको पता है। अपने मुंह से वही शब्द निकालो जो दूसरे को खुशी देंगे, दुख नहीं देंगे। आपको कोई हक नहीं पड़ता है अपने शब्दों से किसी को दुखी करने का, कोई भी। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं आपको नहीं पता, हमारे यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हैं, सामने वाले ऐसे गाली गलौज से बात करते हैं, सामने वाले ऐसे करते हैं, सामने वाले तो ऐसे हैं, सामने वाले तो वैसे हैं। आपने ये देखा, आप उनके बारे में जब बात करो तो आपके क्या एनर्जी आई उनकी तरफ। आप उनको नहीं ठीक कर सकते हो, अपने आप को तो ठीक रख सकते हो ना। किसने बोला है गाली का जवाब सिर्फ गाली होता है? किसने बोला है ये? जिसने भी आपको ये बताया है गलत बताया है। जिंदगी जीने का एक तरीका होता है। मैं मानता हूं कि मैं, मतलब मैं ऐसे कहां पे जहां पे रोज लड़ाई मार होती हो, मैं वहां पे नहीं रहता हूं। मुझे शायद वो सर्कमस्टेंसेस का नहीं पता है, वहां पे सेल्फ डिफेंस क्या होता है वो मुझे नहीं पता है। सेल्फ डिफेंस के अंदर बात करना असर्टिवली एक बात है, किसी का जबरदस्ती जाकर दिल दुखाना एक अलग बात है। मैं दूसरी वाली बात के लिए बोल रहा हूं। तो प्लीज ऐसी आदतें मत डालो दैट यू गो अहेड और आपको खुद को ही पछतावा हो बाद में। जिंदगी छोटी सी है, खुद भी खुश रहो, जो आसपास वाले हैं जिनके साथ प्यार बांटना चाहते हो उन्हें भी खुशियां बांटो, उन्हें भी प्यार बांटो। लोगों के पीठ पीछे बात करके, लोगों के सामने उनकी बुराई करके, आधी आधी पकी हुई बातों के अंदर अपना मसाला डाल के बोलना और अपनी 5 मिनट की खुशी के लिए किसी की जिंदगी के ऊपर जाकर एक ऐसी तोहमत लगा देना कि सारी दुनिया उनके कैरेक्टर को क्वेश्चन मार्क कर दे, ना आपको कोई हक है। और संभल जाओगे तो अपने लिए संभल जाओगे। सो प्लीज 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 प्लीज, इसी बात पर मैं ये दोहा जो है मैं अभी दोबारा पढ़ देता हूं। बोली एक अनमोल है, विच मीन्स वर्ड्स आर प्रेशियस। जो कोई बोले जानी, जो भी बोलता है, जो भी बोलता है उनको ये पता होना चाहिए दैट एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ इज अ प्रेशियस थिंग, दैट एनर्जी दैट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड टू वर्ड्स। ये तराजू तोल के, इसीलिए पूरा, तराजू मतलब तराजू तोलने के लिए होता है। सो इसीलिए प्लीज पूरा तोलो, तब मुख बाहर आनी। जब तोल लो ना, ये इसीलिए है, ये खाली है तो अलग बात है। ये इसीलिए है कि सोचो पहले, सोचो तब मुख बाहर आनी, तब अपने मुंह से बाहर आने दो। Okay, so thank you so much. I'm going to see here if there is. I still can't see because she had written that she would like to join. I'm just checking one last time if she has come. No, she hasn't come. So, once again, guys, hand folded request. If you cannot make it, please do not say that you will join. पर्सनल सर्कमस्टांसेस, लास्ट मोमेंट सर्कमस्टांसेस, अंडरस्टैंडेबल। बट यहां पर आप किसी से अपनी एक अपॉर्चुनिटी खरीद लेते हो, कोई आकर सीख कर कुछ शेयर करना चाहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आप लोग अपने शब्द तोल मोल के बोल, एक सीरीज भी थी, तो तोल मोल के बोल। कभी किसी को दुख पहुंचाने के लिए कुछ मत बोलो, क्योंकि ना दुख पहुंचाने का आपको हक है। और क्यों, किस लिए, छोटी सी जिंदगी है, खुशी खुशी जियो। एंड द सेकेंड थिंग इज, प्लीज डू नॉट गो अहेड एंड से थिंग्स बिकॉज दुनिया बोल रही है, अधपकी सी इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर अपने 4 सोशल मीडिया फॉलोअर बढ़ाने के लिए तो यार प्लीज मत करो। इट इज नॉट वर्थ। आगे जाकर अपनी जिंदगी में ये सेशन याद रखोगे। किसी दिन अगर बोलते हो ना अभी भी, मैं गारंटी करके देता हूं, जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आएगा, उस दिन ये सेशन तुम्हें याद आएगा अगर ध्यान से सुना है, और तुम बोलोगे काश मैंने उस दिन ये बात मान ली होती। तुम सबसे शायद उम्र में मैं बड़ा हूं, अगर मुझसे एक सीख लेना चाहते हो ना, आज तक की सबसे बड़ी सीख, ये मेरी आज की सबसे बड़ी सीख है, आज तक की सबसे बड़ी सीख है। शब्द वो मुंह से निकालो दैट यू कैन लिव बाय। If you cannot, do not. Staying quiet is a much respectable presence than going ahead and saying shit. So please do not spread shit in the world. बहुत सारा naturally हो रहा है to put people into their perspectives of life. You don't need to be an add-on. Don't do that. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you for joining in. Now, the next session will be Saturday. Tomorrow is Thursday. The Doha or the phrase will be uploaded by Friday night. Whosoever really wants to come, please wohi likhna, because then you take away somebody's place. By Friday night, you have to DM and tell who would like to come and join in the live. And Saturday, we again go live at 6 p.m. on GABA Gets You X Co-Learning 11th session. Thank you. Please take care. Have a great evening and have a great life. Stay happy, stay healthy, and spread happiness. Spread, don't spread negativity.
बी द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आप लोग सब मुझे बोलते हो ना, मिस्टर गावा आपको देख के सब तो इतना पॉजिटिव पॉजिटिव ऑरा। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वही बोलता हूं जिस बात में विश्वास रखता हूं। और दूसरी बात यह है, मुझे अच्छा लगता है सामने वाले को खुश देखना। जितना मेरे आसपास वाले खुश होते हैं, मैं उतना ज्यादा खुश होता हूं। सो प्लीज, अगर जरा सी भी इज्जत करते हो, आज से कोशिश करो कि किसी के बारे में गलत मत बोलो, और कोई भी अधूरी जानकारी के ऊपर तो अपनी विशेष टिप्पणी देने की जरूरत ही नहीं है। इतना ही शौक आ रहा है तो प्लीज जाके रिसर्च करो। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट 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 इवनिंग एंड टाइम्स टू कम। थैंक यू। बाय।